हेलो बच्चों, आप है अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह एंड थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने ऑटो साइकिल के बारे में देखा और लेक्चर 2 में हम लोग डीजल साइकिल के बारे में देखेंगे। और आज हम लोग डीजल साइकिल में देखें assumptions ऑफ द डीजल साइकिल, ऑल प्रोसेस इन डीजल साइकिल, पीवी एंड टीएच डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल, pressure ratio, efficiency of the diesel cycle, mean effective pressure. Assumptions for diesel cycle is same as the assumptions for auto cycle. Working fluids should be have as ideal gas. They act as ideal gas. All process are internally reversible. Specific heat at constant volume and constant pressure should be constant. Diesel cycle is also air standard cycle. Means air is uh, assumed as a working fluid. It is the compression ignition engine. Compression ignition engine means that here there is no external agency is required for ignitions of the fuel. The Otto cycle, external agency as a spark plug is used to ignite the fuel, but here fuel is ignite itself. It is also called a self ignition engine. It has several names: compression ignition, self ignitions, and it is also called diesel engine. So here all process of the diesel cycle. Diesel cycle has four process. Here 1 to 2 is a reversible adiabatic compression. In this cycle only air is compressed. Here only air is enter in the cylinder. But in the Otto cycle, air plus fuel is enter in the cylinder. It is mixed by carburetor. But here in the cylinder only air is entered. In process 1 to 2, 1 to 2 is a reversible adiabatic compression. In the reversible adiabatic compression, entropy is constant, मतलब S1 equal to S2. Process 2 से 3, process 2 से 3, this process is constant pressure heat addition. In this process, pressure should be constant and heat is supplied. Process 3 to 4, reversible adiabatic expansion. In the reversible adiabatic expansion, entropy should be constant, S3 equal to S4. And process 4 to 1 is constant volume heat addition. In this process, heat is rejected from the system at constant volume. Difference between Otto cycle and diesel cycle is that here heat supply at constant pressure, but in the Otto cycle heat is supplied at constant volume. You can also watch the lecture number 1. Here some curve is there like PV diagram and TS diagram. So how we can draw the PV diagram and TS diagram? Here PV diagram is there. Process 1 से 2 reversible adiabatic compression, 2 से 3 constant pressure heat addition, and 3 to 4 reversible adiabatic expansion, 4 to 1 constant volume heat rejection. So here process 1 से 2 is a reversible adiabatic process. In the reversible adiabatic process, U should be 0, means heat interaction between system and surrounding should be 0, and P vapor power and P vapor power gamma should be
constant. So here if heat transfer should be 0, then change of entropy Q by T should be 0, so that entropy S1 equal to S2. So in the process 1 से 2, entropy should be constant. So on the TS diagram, what we can do, draw a straight line parallel to temperature axis. So 1 से 2 entropy should be constant, means S1 equal to S2. So it will be a straight line parallel to T. Correct. अब क्या करेंगे, in the process 2 से 3 constant pressure heat addition. So here pressure P2 equal to P3. करेक्ट. तो अभी क्या करेंगे, अब आइडियल गैस के लिए इंट्रोपी का फॉर्मूला देखेंगे फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए, मतलब कांस्टेंट प्रेशर के लिए. सो आइडियल गैस का इंट्रोपी का फॉर्मूला, चेंज ऑफ इंट्रोपी इक्वल टू S2 माइनस S1 Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. So here temperature is there and pressure is there. तो हीट क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड हो रहा है. इससे हम लोग देखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि P2 इक्वल टू P1 है, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0. सो ओनली टेम्परेचर टर्म बचेगा. तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं इन द प्रोसेस 2 से 3, तो इंट्रोपी चेंज S3 माइनस S2 इक्वल टू Cp ln T2 by T1. तो इंट्रोपी एंड टेम्परेचर के बीच लॉग का फंक्शन है. तो जो लॉग का कर्व होगा, ये जो कर्व 2 से 3 है, ln का कर्व है, 2 से 3 एक कर्व होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है. तो हीट ऐड होगा तो टेम्परेचर राइज करेगा. तो प्रोसेस 2 से 3 क्या हो गया, ln का कर्व होगा और टेम्परेचर राइज होगा. तो देखिए इस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, अपर डायरेक्शन राइज हो रहा है. तो ये पे क्या है, T2 है, यहाँ पे देखेंगे तो T3 है. ठीक है. 3 to 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. हियर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हीट ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग के बीच क्या होगा, 0 होगा, एंड पीवी पर पावर गामा कर्व को फॉलो करेगा ऑन पीवी डायग्राम. और टीएच डायग्राम में क्या होगा, टीएच डायग्राम देखिए, हीट ट्रांसफर क्या होगा, 0 होगा. तो चेंज ऑफ इंट्रोपी Q बाई टी शुड बी 0. सो इंट्रोपी क्या होगा, S3 इक्वल टू S4. तब यहाँ पे भी इंट्रोपी 2 से 3 में कांस्टेंट होगा. तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टेम्परेचर. तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 एक स्ट्रेट लाइन आ गया 4 तक. अभी क्या हो, हीट रिजेक्ट हो रहा. जब हीट रिजेक्ट होगा तो तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा. इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फिर देखिए 4 to 1, 4 to 1 इज हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इंट्रोपी के लिए रिलेशनशिप कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में हम लोग देखेंगे. S2 माइनस S1 फॉर आइडियल गैस के लिए CV ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V. देखिए यहाँ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है. यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ln1 की वैल्यू 0 होती है. V1 to V2 है, तो ये क्या बच जाएगा, CV ln T2 by T1. तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस 1 से 4 के लिए S1 माइनस S4 इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ln T2 by T1. तो ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे T4 by T1 जो भी हो, फाइनल T1 by T4 हो जाएगा. T1 by T4 CV ln T1 by T4. अब देखिए CV, अब देखिए इंट्रोपी एंड टेम्परेचर के बीच ln ग्राफ है. तो देखिए लॉग का ये भी ग्राफ है, बट इसका
स्लोप ज़्यादा होगा, इसके रिस्पेक्ट में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्लोप होता है वो लेस होता है कांस्टेंट प्रेशर पे इन टी एस डायग्राम। तो यहाँ से 4:1 लॉ का ग्राफ होगा और ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट होगा 4:1, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। 3-4 में क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डाउन होता है, करेक्ट। तो 3-1 टेम्परेचर डाउन होगा ड्यू टू एक्सपेंशन एंड 4:1 टेम्परेचर डाउन होता ड्यू टू हीट रिजेक्शन। तो ये टी एच डायग्राम में ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही पीवी डायग्राम एंड टी एच डायग्राम आप देख सकते हैं कि टी एच डायग्राम में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, उसमें इंट्रोपी कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन, बाकी कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व होता है, लॉ का कर्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुछ डिजाइन पैरामीटर, देखिए जैसे ऑटो साइकिल में भी देखे थे कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, जो इनिशियल वॉल्यूम होता है डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, माने वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशर डिवाइडेड वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशर, इसका वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि 15 से 25 के बीच में रहता है ये कंप्रेशन रेशियो, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक इनलेट वाल होता है, इनलेट वाल से सिर्फ एयर इंटर करता है, याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ एयर इंटर करता है, एयर इंटर करेगा इसमें। तो एयर जब इंटर करेगा सिलेंडर के अंदर तो इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते आते तो ये आएगा, ये इस वन पोजीशन पे रहेगा इनिशियल में। तो पूरा यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 0 to 1 क्या होगा, एयर इंटर करेगा। बट ऑटो साइकिल में क्या इंटर करता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर प्रिपेयर करता था और इनलेट वाल से ऑटो साइकिल में एयर प्लस फ्यूल इंटर करता। बट इन द डीजल साइकिल से ओनली एयर शुड बी इंटर थ्रू द इनलेट वाल। तो यहाँ से एयर इंटर किया, पूरा चैम्बर या पूरा सिलेंडर फिल हो गया एयर से। अब क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और धीरे धीरे एयर कंप्रेस होने लगेगा और ये होते होते जो अपना पिस्टन है पोजीशन 2 पे चला आएगा। तो जब ये पोजीशन 2 पे आएगा तो जो पूरा सिलेंडर का जो एयर था वो इस वॉल्यूम के अंदर, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, जो अभी ऑटो साइकिल में मैंने डिस्कस किया है, और इस वॉल्यूम को बोलते हैं स्वेट वॉल्यूम, ओनली इस वॉल्यूम, और एक क्लियरेंस वॉल्यूम। और जो टोटल वॉल्यूम V1 होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेट, और V2 होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, करेक्ट। तो अब एक कंप्रेशन रेशियो हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ पे जैसे कंप्रेस होता है एयर, जैसे कंप्रेस होता है इसका टेम्परेचर एयर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग ये टेम्परेचर लगभग ये आपके आसपास 2200-2300 के आसपास जाता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे एक इंजेक्टर रहता है, उसके थ्रू फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर रहता है, तो अभी क्या है, एयर क्या है, ऑलरेडी एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जैसे फ्यूल इंजेक्ट करेंगे फ्यूल बर्न होने लगेगा, और जैसे फ्यूल बर्न होगा उसके वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर और राइज कर जाएगा, और क्या होगा, ये नीचे की तरफ इस पर थ्रस्ट लगाएगा और जिससे हमको पावर मिलेगा, करेक्ट। तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑटो साइकिल में एयर प्लस फ्यूल यूज हो जाता है और स्पार्क प्लग यूज करते हैं। यहाँ पे स्पार्क प्लग यूज नहीं करते हैं, सिलेंडर में सिर्फ एयर इंटर करता है। और जो आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज होता है, और उसके बाद जो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को यहाँ से इंजेक्ट करते हैं जिससे फ्यूल बर्न होता है और ये पावर सप्लाई, इसीलिए या इसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन
इंजन ही बोलते हैं, इसमें अपने आप इग्निशन होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाना पड़ता। चलिए, एक यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो है। एक्सपेंशन रेशियो को आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है? एक्सपेंशन में हमारा जो V3 है, यहाँ पे देखेंगे V3 यहाँ पे देखेंगे, देखिए ग्राफ पे कहाँ आएगा V3 डिवाइडेड बाई, सॉरी, V4 डिवाइडेड बाई V3। तो V4 डिवाइडेड बाई V3 को क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन रेशियो। एक कट ऑफ रेशियो होता है, जो कट ऑफ रेशियो जो हीट सप्लाई करते हैं वहां पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये V2 है अपना वॉल्यूम। तो एक कट ऑफ रेशियो होता है वॉल्यूम आफ्टर हीट रिजेक्शन के, सॉरी, हीट एडिशन के बाद वॉल्यूम, और हीट रिजेक्शन, सॉरी, हीट एडिशन से पहले का वॉल्यूम। तो उसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर है, केयरफुली ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? V1 डिवाइडेड बाई V2, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। उसके बाद एक्सपेंशन रेशियो होता है। एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है? बिफोर वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन V4 डिवाइड बाई बिफोर एक्सपेंशन V3। तो V4 बाई V3। कट ऑफ रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम बिफोर, सॉरी, वॉल्यूम आफ्टर द हीट एडिशन V3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बिफोर हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। तो V3 बाई V4। और यहां से देखेंगे V, अगर देखेंगे यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाई V2 मल्टीप्लाई यानी कंप्रेशन रेशियो मल्टीप्लाई V4 बाई V2, सॉरी, V4 बाई V3 एक्सपेंशन रेशियो। तो एक क्या हमारा कंप्रेशन रेशियो है इनटू एक्सपेंशन रेशियो। इसका वैल्यू कितना होगा? यहां से देखिए, यहां पे हमको मालूम है, यहां से देखिए V1 इक्वल टू V4। तो V1, सॉरी, यहाँ पे हम लोग उल्टा कुछ कर दिए हैं, इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कट ऑफ रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए फिर से अगेन देखते हैं क्या ये रेशियो क्या कैसे आएगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो क्या? V4 डिवाइडेड बाई V3 एक्सपेंशन रेशियो है। कट ऑफ रेशियो क्या? V3 बाई V2। ठीक है, इसको क्या एक्सपेंशन रेशियो मल्टीप्लाई कंप्रेशन रेशियो। तो देखिए V4 किसके बराबर है? V1 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे V3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V4 बाई V2। और V4 किसके बराबर है? यहाँ से देखते हैं V4 इक्वल टू V1। तो V1 बाई V2, और V1 बाई V2 किसके बराबर है? ये बराबर है कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ से देखेंगे R। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो मल्टीप्लाई कट ऑफ रेशियो। ध्यान रखिएगा, या अक्सर कंपिटेटिव एग्जाम में पूछता है, दो दिया रहेगा, कोई एक आपसे पूछ लेगा। चलिए इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन डेरिवेशन इसका देखेंगे। पीवी डायग्राम, टीएच डायग्राम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हीट एडिशन कहाँ होता है? 2 से 3। ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर Q1 इक्वल टू mass of the working fluid into specific heat at constant pressure into temperature difference T3 minus T4।
और यहाँ पे Q2 हीट रिजेक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इनटू specific heat at constant volume into temperature difference. So temperature difference should be T4 minus T1. So it is a heat addition, it is a heat rejection. So net work output, we know that for the cyclic integral of heat equal to cyclic integral of work for cycle in a closed system. तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W क्या हो जाएगा, W नेट है. और हीट क्या आ जाएगा, हीट एडिशन को हम लोग Q1 लेते और हीट रिजेक्शन हो रहा है तो निगेटिव साइन के साथ लेते Q2. सो हमारा नेट वर्क क्या हो जाएगा, नेट वर्क शुड बी Q1 माइनस Q2. सो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी वी नो डेट इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी शुड बी डीजल इंजन का इफिशियंसी क्या होना चाहिए, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट. हमारे पास आउटपुट क्या है, W नेट वर्क नेट आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट क्या है, हीट सप्लाई Q1. सो देखिए W नेट डिवाइडेड बाई Q1, तो W नेट क्या है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1. सो यहाँ से 1 माइनस Q2 बाई Q1, सो इक्वल टू 1 माइनस, अब Q2 की वैल्यू क्या है, MCB T2 माइनस MCB T4 माइनस T1, MCB T4 माइनस T1, और हीट सप्लाई क्या है, MCP T3 माइनस T2. तो हियर यहाँ से M से M कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 1 माइनस T4 माइनस T1, ये बच जाएगा हमारे पास क्या, CB डिवाइड बाई CP. वी नो, हम लोग जानते हैं CP डिवाइडेड बाई CB को क्या गामा बोलते हैं, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, CB बाई CP शुड बी 1 बाई गामा. तो यहाँ पे देखिए 1 बाई गामा और रिमेनिंग टेम्परेचर टर्म यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं W नेट, यहाँ पे 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं. अब देखिए प्रोसेस 1 से 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, करेक्ट. तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसके लिए हमको मालूम है TV पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. अगर हम देखें पॉइंट 1 पे T1 V1 पे पावर गामा इक्वल टू T2 V2 पे पावर गामा, सॉरी गामा माइनस 1, गामा माइनस 1. सो T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 पे पावर गामा माइनस 1. इसको मैंने अरेंज कर दिया. यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर T2 को मैंने इधर ला दिया और V2 पे पावर गामा माइनस 1 को इधर ला दिया. तो ये अरेंज हो गया सेम फैशन में. तो T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 पे पावर गामा माइनस 1, और V2 बाई V1 इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो, तो RK पे पावर गामा माइनस 1, कंप्रेसर रेशियो पे पावर गामा माइनस 1. तो यहाँ से T2 क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू T1 RK पे पावर गामा माइनस 1. सो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू T1 RK पे पावर गामा माइनस 1. यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या करना है, सारे टेम्परेचर को T1 के टर्म में लाना है. क्योंकि यहाँ T1 के टर्म में लाएंगे तो ऊपर से भी T1 कैंसिल आ जाएगा और नीचे से भी कैंसिल आ जाएगा. सो हमको T4 को T1 में लेना है, T3 को T1 के टर्म में लेना है, और T2 को भी T1 के टर्म में लाना है. तो देखिए यहाँ T2 जो हमारा T1 के टर्म में आ गया. अब हमको क्या करना है, और T3 को T1 के टर्म में लाना है. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं.
फिर देखिए इन द प्रोसेस 2 से 3, हमारा जो प्रोसेस 2 से 3 है इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है P2 इक्वल टू P3। तो देखिए यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड का मास होगा 2 पे, वही मास 3 पे भी होगा, सेम मास होगा क्योंकि क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ पे देखेंगे आइडियल गैस से PV इक्वल टू MRT, सो मास शुड बी PV डिवाइड बाई R। तो यहाँ से देख सकते हैं एट अ पॉइंट 2 पे क्या होगा, एट अ पॉइंट 2 पे मास P2 इंटू V2 डिवाइड बाई RT2 इक्वल टू पॉइंट 3 पे क्या होगा, P3 V3 RT3, करेक्ट। और यहाँ पे हमको पता है P2 इक्वल टू P3 है, तो यहाँ से देखिए P2 P3 कैंसिल आउट, बच जाएगा V2 डिवाइड और R1, सॉरी R और R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V2 डिवाइड बाई T2, V2 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई T3। तो ये देखिए एक रिलेशनशिप आ गया, मतलब V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अरेंज कर लेंगे T3 बाई, मतलब इसको रिप्लेस कर लेंगे, T3 को इधर ला देंगे, T2 को इधर ला देंगे, तो T3 बाई T2 इक्वल टू V3 बाई V2। अब देखिए V3 बाई V2 क्या है, V3 बाई V2 इज कट ऑफ रेशियो, क्योंकि हीट आफ्टर द हीट एडिशन जो वॉल्यूम है V3 डिवाइड बाई बिफोर द हीट एडिशन V3 को क्या, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, हीट रिजेक्शन। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा V3 होगा, तो V3 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल कॉल्ड कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। तो यहाँ से T3 इक्वल टू T2 इंटू कट ऑफ रेशियो। अब देखिए हमको T2 मालूम है T1 के टर्म में, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस किए जितने भी टेम्परेचर सबको T1 के टर्म में लाए, तो T1 ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए, सॉरी T2 ऑलरेडी निकाले हैं, T2 इक्वल टू T1 कंप्रेशन रेशियो पर गामा माइनस, तो यहाँ से T2 यहाँ पे पुट कर देंगे। सो तो यहाँ से T2 की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट किए, T1 इंटू आर के पावर गामा माइनस 1 कम इंटू कट ऑफ रेशियो। सो ये हमारा T2 कैलकुलेट हो गया इन टर्म ऑफ, सॉरी T3 कैलकुलेट हो गया इन टर्म ऑफ T1। सारे टेम्परेचर को हमको पता है T1 की, तो T1 कंप्रेसर रेशियो पर गामा माइनस इंटू कट ऑफ रेशियो। चलिए देखते हैं अब प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप ये होगा, मीन्स दैट T3 V3 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T4 V4 पे पावर गामा माइनस 1। अब अरेंज कर लेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ से T4 को इस साइड लाएंगे और V3 को इस साइड लेंगे, तो T3 डिवाइडेड बाई T4 इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाई V3 पे पावर गामा माइनस। और ये देखिए V4 डिवाइडेड V3 एक क्या हमारा एक्सपेंशन रेशियो है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, V4 डिवाइडेड V3 इज एक्सपेंशन रेशियो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1। तो यहीं पे देखिए यहाँ पे रिप्लेस किया गया V4 बाई V3 को एक्सपेंशन रेशियो, तो T3 बाई T4 इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ सब क्या करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, हमको T4 चाहिए, T4 इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे T4 इक्वल टू, इसको इधर ला देंगे और T4 को उधर ला देंगे, तो T4 इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई एक्सपेंशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1। और यहाँ पे देखिए T3 हमको T1 के टर्म में कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, T3 इक्वल टू T1 इंटू कंप्रेशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ से T3 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर दी, यहाँ से हम लोग क्या किए T3 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कर दी।
तो T1 कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाई एक्सपेंशन रेशियो पावर गामा माइनस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंशन रेशियो को कट ऑफ रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो के टर्म में रिप्लेस करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो है इक्वल टू होता है एक्सपेंशन रेशियो इंटू कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं, एक्सपेंशन रेशियो को क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन रेशियो को क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो पावर गामा माइनस 1। सिर्फ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए T1 आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशियो इंटू, अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ रेशियो है, तो कट ऑफ रेशियो पावर गामा माइनस 1 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, और नीचे के आर के कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक हमारा कट ऑफ रेशियो इधर, और कट ऑफ रेशियो गामा गामा पावर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, मतलब कट ऑफ रेशियो पावर 1 प्लस गामा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कंप्रेशन रेशियो पर पावर गामा बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ से रिमेनिंग टर्म थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये दोनों को जब मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ रेशियो पावर गामा। अब यहाँ से देखिए ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे T1 बच जाएगा। तो T1 इंटू कट ऑफ रेशियो पावर गामा। तो यहाँ पे भी हम लोग T4 को सिंप्लीफाई कर लिए, T1 इंटू कट ऑफ रेशियो पर पावर गामा। अब इस सारे टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे इफिशियंसी में। अब देखिए हम लोग के पास इफिशियंसी क्या था, 1 माइनस T4 माइनस T1 इंटू T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू T3 माइनस T2। तो सारे टेम्परेचर हमको T1 के टर्म पता है, T4 भी T1 के टर्म पता है, T3 भी T1 के टर्म पता है, T2 भी T1 के टर्म पता है। तो ऊपर से T1 कैंसिल होता है। जैसे T2 हमारे पास है T1 गामा कंप्रेशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1, T3 इक्वल टू T1 कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशियो, और T4 इक्वल टू T1 इंटू कट ऑफ रेशियो पावर गामा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पुट कर दिया T4 को T1 कट ऑफ T1 इंटू कट ऑफ रेशियो पावर गामा, ठीक है, माइनस T1। ये T1 जो है ऑलरेडी यहाँ पे T1 रह गया, गामा इंटू, अब देखिए T3 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। तो T3 क्या हो जाएगा हमारा, ये T3 की वैल्यू है, T3 की वैल्यू है T1 कंप्रेसर रेशियो पर पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशियो माइनस, अब T2 को रिप्लेस कर लेंगे यहाँ से। तो T2 क्या हो जाएगा, T1 इंटू T1 इंटू कंप्रेशन रेशियो पर गामा माइनस 1। तो यहाँ से देखिए T1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो T1 से T1 कैंसिल, T1 देखिए सब, T1 यहाँ भी है, T1 यहाँ भी है, तो यहाँ से T1 कॉमन लेंगे, T1 यहाँ भी है और T1 यहाँ भी है। तो T1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस कट ऑफ रेशियो पावर गामा माइनस 1 इन कट ऑफ रेशियो पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशियो माइनस कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस 1। अब देखिए कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस यहाँ भी है, कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस 1। तो इसको क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे।
तो गामा इंटू कंप्रेशन रेशियो पर गामा माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कट ऑफ रेशियो, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ रेशियो -1। तो इसको क्या करेंगे, अगर अरेंज करेंगे तो इस फैशन में आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो पर गामा माइनस 1 इंटू 1 बाई गामा इन ब्रैकेट में कट ऑफ रेशियो पर गामा -1 डिवाइडेड बाई कट ऑफ रेशियो -1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल। और यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो क्या है, V1/V2, और कट ऑफ रेशियो क्या है, V3/V2। तो ये हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा डीजल साइकिल का। देखिए कुछ रिमार्क्स देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो। जैसे ऑटो साइकिल का था, सिमिलर यदि आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे, मतलब आर के, यदि आर के हम बढ़ाएंगे, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे, तो इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब से बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, ओवरऑल वही वैल्यू कम हो जाएगा। जिससे वैल्यू कम होगा तो 1 में से कम चीज को माइनस करना पड़ेगा, तो ओवरऑल इफिशियंसी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो। यदि मान लीजिए कट ऑफ रेशियो को आप बढ़ा रहे हैं, कट ऑफ रेशियो को बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल हमेशा डिक्रीज करेगी। क्यों, कि देखिए कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे, कट ऑफ रेशियो क्या, वीसी, अगर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इस ए जो वैल्यू है इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा, आरसी बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगा, और ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा वैल्यू 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू कम आएगा, ओवरऑल वैल्यू कम आएगा। तो कट ऑफ रेशियो बढ़ाने से डीजल साइकिल की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। वर्क इन डीजल साइकिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो। यदि कट ऑफ रेशियो आप बढ़ा रहे हैं तो जो डब्लू नेट है वो हमारा बढ़ेगा। कैसे देखते हैं, अब क्या, एक पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम हो या टीएच डायग्राम है, जो साइकिल का जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया है साइकिल का, पीवी डायग्राम या टीएच डायग्राम में, ये डब्लू नेट बताता है। तो अब देखिए आप क्या किए, कट ऑफ रेशियो बढ़ाए, कट ऑफ रेशियो क्या, सॉरी, कट ऑफ रेशियो मेरा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑलरेडी। कट ऑफ रेशियो क्या है, आर सी इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V2। और इसको बढ़ाना है तो हमको V3 को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको यहाँ लाना पड़ेगा। दूसरे कलर से ले लेते, अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इतना एरिया बढ़ गया, तो अब एरिया ज़्यादा हो गया। इसका एरिया देखिए, पूरे साइकिल जो कवर कर, इसका एरिया ज़्यादा हो गया, तो वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अक्सर ये तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि क्या कैसे जो इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इन्फ्लुएंस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। ये ध्यान रखिएगा, सेम कंप्रेशन रेशियो, यदि कंप्रेशन रेशियो सेम है तो हमेशा ऑटो साइकिल का इफिशियंसी ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे ऑटो साइकिल के इफिशियंसी का फॉर्मूला ये है, डीजल साइकिल के इफिशियंसी का फॉर्मूला ये है। तो जो एक्स्ट्रा टर्म ये आ रहा है ना डीजल साइकिल का, ये हमेशा एक से ज़्यादा होता है, हमेशा एक से ज़्यादा होता है। तो अगर डीजल का देखेंगे इफिशियंसी 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो पर गामा -1, अगर इसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा x। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा हो, अगर वो एक से ज़्यादा हो, तो ये
ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 से ज़्यादा वैल्यू घटाएंगे तो इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो हमेशा ऑटो साइकिल वेस्ट होता है, लेकिन जो डीजल साइकिल है हायर कंप्रेशर रेशियो पे काम करता है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे भी, इन जनरल, जो जनरल लाइफ है, द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज ऑलवेज हायर देन ऑटो साइकिल, because the diesel cycle work with the large compression ratio than the ऑटो साइकिल। हमेशा डीजल साइकिल का एफिशिएंसी रियल लाइफ में ज़्यादा होता है ऑटो साइकिल पे। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो दोनों का सेम नहीं होता। अगर सेम है तो ऑटो साइकिल बेस्ट है, लेकिन हमेशा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, 6:12 होता है, बट जो है डीजल साइकिल के जो कंप्रेशन रेशियो होता है 14 से 25 होता है। तो हमेशा हायर कंप्रेशन रेशियो पे काम करता है अपना डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है ऑटो साइकिल से। और ये देखिए कुछ पॉइंट जो कम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे इंटरव्यू में पूछता है। द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इंजन, SIT, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हमेशा पेट्रोल इंजन का ज़्यादा होता है। ये होता है 250 से 280 सेंटीग्रेड होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द डीजल, डीजल का क्या होता है, SIT 210 200 210 से लेके 215 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से देख सकते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इंजन इज, हमें पेट्रोल इज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल हमेशा ज्यादा होता है पेट्रोल का। सेल्फ इग्निशन माने अपने आप इग्नाइट कर जाना, वो ज्यादा होता है हमेशा पेट्रोल का। डीजल क्योंकि डीजल हैज लोअर SIT देन पेट्रोल बिकॉज इट इज डेंसर एंड लेस वोलेटाइल। जो डीजल होता है उसका डेंसिटी कम होता है और वोलेटिलिटी भी कम होता है। पेट्रोल इंजन का वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। द बिग पीक टेम्परेचर इन ऑटो साइकिल, पीक टेम्परेचर 2000 से लेके 2700 तक होता है। एंड पीक टेम्परेचर इन द ऑटो साइकिल इज, सॉरी, ये एक्चुअली इट शुड बी डीजल, इट शुड बी डीजल। The peak temperature in the diesel cycle is 200 से लेके 3000 के बीच में होता है। मीन्स जो पीक टेम्परेचर होता है, P जो पीक होता है, जो डीजल इंजन का जो होता है हमेशा ज्यादा होता है T पीक पेट्रोल्स। क्यों? क्योंकि ये हायर कंप्रेशन रेशियो पे, डीजल इंजन हमेशा हायर कंप्रेशन रेशियो पे काम करता है, तो हायर कंप्रेशन रेशियो पे टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। पीक टेम्परेचर इन डीजल इंजन जनरली हायर देन द ऑटो साइकिल बिकॉज ऑफ द हायर कंप्रेशन रेशियो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ऑटो साइकिल जनरली हैज हायर पीक टेम्परेचर देन डीजल साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो ऑटो साइकिल का पीक टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बट इन जनरल जो डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए पीक टेम्परेचर डीजल इंजन के अंदर ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ से ग्राफ से भी देखे, TS डायग्राम से भी देख सकते। एक क्या है, ये जो लाइन है, जो सॉरी ये जो कर्व है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए कौन सा होता है अपना डीजल। जो हीट एडिशन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे डीजल के लिए। और अगर मान लीजिए पेट्रोल होगा ना, तो सेम कंप्रेशन के लिए इसका जो कर्व ऐसे आ जाएगा, इसका जो कर्व आएगा अपना पेट्रोल के लिए ऐसे। और मान लीजिए यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पे, तो इसके लिए देखिए टी देखेंगे
डीजल के लिए टी ए हमारा T3 जो पीक टेम्परेचर है डीजल के लिए ए है, बट पेट्रोल के लिए देखेंगे तो पेट्रोल के लिए ए है। और सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए ठीक है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेम के लिए ऑटो साइकिल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब देखिए कुछ स्लोप से रिलेटेड देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू कांस्टेंट है और वॉल्यूम इक्वल टू भी कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा स्लोप से रिलेटेड देख लेते हैं। क्वेश्चन आता भी है, चाहे आगे भी ड्यूअल साइकिल में भी हमको यूजफुल हो। स्लोप एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम कांस्टेंट अगर प्रेशर पे स्लोप देखना है तो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपको टीएस डायग्राम में अगर स्लोप देखना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये क्या होता है, स्लोप एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंडर टीएस डायग्राम इक्वल टू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन हमको पता, आप देखिए यहाँ से 1 और 2 से जब देखेंगे आप, तो जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दो dt slope at constant volume is greater than slope at constant pressure। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता भी, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ देखिए Cp की वैल्यू ज़्यादा होगा, Cp की वैल्यू ज़्यादा हो तो ओवरऑल A वैल्यू कम होगा, Cv की वैल्यू क्या होगा, कम है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल A वैल्यू ज़्यादा, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज़्यादा हो। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे ए लाइन ए है और एक लाइन ए है, सॉरी एक कर्व ए है। एक कौन सा है, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है, एक क्या है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए हमेशा ये ऊपर है, ये नीचे रहे, क्योंकि स्लोप अगर देखेंगे ना तो एंगल होता है, और ये अगर देखेंगे ये जो एंगल है, एक स्लोप बताएं कांस्टेंट प्रेशर पे और ये एंगल है तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा अंदाज करके भी देख सकते हैं। अगर सेम पॉइंट से देखना है ना, तो ये ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, अगर ये रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, ये उसके जस्ट नीचे कांस्टेंट प्रेशर का रहेगा। और स्लोप देखना है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना बनाया, ये थीटा पी हो गया, ये थीटा वी हो गया। ठीक है, तो हमेशा जो कर्व रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व हमेशा ऊपर रहेगा, अगर विथ टू कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो उसको देख लीजिएगा। तो अभी मैंने एक बहुत सारा यूज़ किया है इंट्रोपी के लिए, आइडियल गैस के लिए, तो यहाँ से आप एक इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, याद भी। चेंज ऑफ इंट्रोपी इन द प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, चेंज ऑफ इंट्रोपी इन प्रोसेस फॉर आइडियल गैस के लिए, यदि आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है तो Cp ln T2 बाई T1 माइनस R ln P2 बाई P1। यदि आपको टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिया है तो Cv ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1। यदि आपको वॉल्यूम एंड प्रेशर दिया है तो Cp ln V2 डिवाइड बाई V1 प्लस Cv ln P2 बाई P1। अगर इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा कैसे देखेंगे, देखिए यदि टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है तो क्या हो जाएगा, Cp ln T2 बाई T1। अब यहाँ पे Cp आया है, करेक्ट, तो उसके बाद माइनस, प्रेशर जब भी आएगा माइनस आता है, माइनस, देखिए यहाँ P है तो ln P2 बाई P1 का, और यहाँ पे R है क्योंकि ये टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर के साथ R, PV इक्वल टू एम आर टी हो तो टेम्परेचर के साथ R आता है। सिमिलरली अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV ln T2 बाई T1। अब देखिए यहाँ पे V है तो यहाँ पे ln V2 बाई V1 आएगा, और टेम्परेचर है तो ये R आएगा, और प्लस के साथ आता है, सिर्फ माइनस प्रेशर के साथ आता है। यहाँ पे देखिए Cp ln V2 बाई V1, यहाँ पे Cp आ गया ना, तो देखिए ln P2 बाई P1, और यहाँ पे देखिए Cp क्यों आया है, सॉरी यहाँ
ये देखिए V2/V1 क्यों आएगा, यहाँ अगर CV है तो ln V2 माने अपोजिट में होगा। स्पेसिफिक हीट अगर R रहेगा तो यदि R रहेगा तो उससे पहले वाला टेम्परेचर के टर्म में आएगा। देखिए R है तो इससे पहले टेम्परेचर का टर्म आया हुआ, और यहाँ पर अगर CP है तो उसके बाद वाला टर्म प्रेशर का आएगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का टर्म आएगा। थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा और थोड़ा मेमोराइज करने के लिए। और यहाँ CP है, अगर CP है ना, CP है तो उसके बाद वाला टर्म आएगा प्रेशर का। अगर लास्ट वाला में CV है तो उसके पहले वाला टर्म वॉल्यूम का आएगा। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद।